ایک چیز جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھو اور اس کو سمجھو تو اپنے عقیدے کو ایک سائڈ پہ رکھ دو کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کون ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کو بتایا کیا کیا ہے۔ اس وقت مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑ لے بہت اعلیٰ، اور پھر اس کو سمجھے کہ میرا رب مجھے کیا فرما رہا ہے، حکم کیا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اب آپ جو بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا نے کی کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا یا کیا ہے، اس چیز کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نبوت کو سمجھے کہ نبوت ہے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابھی علت عامہ کا میرے بھائی نے جو ہے بتایا آپ کو، اس کے بعد اب امکان نبوت ہے۔ سب سے پہلی کیوں اپنا خلیفہ بھائی بھی اور یہاں پر بھی کہ اثبات نبوت کیا ہے، امکان نبوت کیا ہے اور ضرورت نبوت کیا ہے، اس کے اوپر اب ہمیں مطلب نبوت کا ہمیں پتہ چل گیا، نبی کا پتہ چل گیا، رسول کا پتہ چل گیا۔ اب سوال ہے تین، ایک ہے امکان نبوت، دوسرا ہے اثبات نبوت، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے ضرورت نبوت۔ اب جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں ان تین چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھے سے خلیفہ بھائی بتا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی جو بات بڑی سمپل سادہ سی ہے، اس کو گرامر میں ڈال کے اصطلاحوں میں ڈال کے لمبا کر کے کوئی سینس نہیں اس کا۔ بات صرف اتنی ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے؟ آپ قرآن شریف سے پڑھ رہے ہیں، ختم نبوت ہو گئی ہے، رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا ہے، نبیوں کو ختم کرنے والا، یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی ذکر کر رہا ہے قرآن شریف؟ نہیں کر رہا، بات ختم ہوگی، پھر آپ پریشان کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جی ایز اے نبی کوئی بھی نہیں آ سکتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آ کر، جیسے میں نے ابھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ ان نبی والرسول، کہ نبی اور رسول کیا ہوتا ہے۔ نبی اور رسول کا تو پتہ ہے، انسان ہے وہ، جی پچھلے ہفتے وہ پچھلے انسان سال ہے، اور کئی لوگ اس وقت 15 سال کے ہو گئے ہیں، بعض لوگوں کی عمر 35 سال بھی بتائی جاتی ہے، اور بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ 45 اور 50 کو بھی پہنچ گئے ہوں۔ تو یہ تو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کون۔ بات سمپل اتنی ہو رہی ہے کہ کیا ختم نبوت کے بعد نبی اللہ اور رسول اللہ آ جائیں گے؟ جی اس سینس میں کہ دیکھیں میں یہی تو کہنا چاہ رہی تھی نا اپنا حسینی بھائی، کہ نبی اور رسول جو نبوت ہے، جب یہ ختم نبوت ہے، جب یہ ختم ہو گئی، اب مطلب ہے کہ اس سلسلہ نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل کر دیا۔ اب کسی کو نبوت کے منصب کے اوپر نہیں فائز کیا جائے گا کہ کوئی نبی کو رسول ہو۔ واپس ایک آدمی نے مان لیا، دوبارہ پھر شروع ہو جائیں گے ختم نبوت سمجھانا۔ جس نے مان لیا تو مان لیا، اس کو دوبارہ ختم نبوت۔ احمدی پہلے سمجھاتے ہیں کہ وفات مسیح مان لو، جب وفات مسیح مان لی تو انہوں نے کہا وفات مسیح کے تمہیں دلائل دیتے ہیں قرآن۔ او بھائی جب مان لی تو اب دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح جب ختم نبوت مان لی تو اب دلائل کی کیا ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ ثابت کرتے ہیں کہ ختم نبوت۔ حسینی بھائی دیکھیں، جی جی نبوت، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، کیا نہیں واپس آپ سمجھائیں، لو جی سمجھو، صبر صاحب سمجھائیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں جو میرے نزدیک کہ جو سلسلہ نبوت حضرت آدم سے شروع ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ ان کا سوال یہی ہے میرا خیال، ختم نبوت کے متعلق ہی پوچھ رہے ہیں صبر سائید صاحب۔ تو میں کہتی ہوں کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہے، اگر پہلے ساری نبی آ جائے تو ختم نبوت کو کیا فرق پڑے گا اس کا؟ صاحب میں آپ کو اپنے سوال، میرا خیال ہے آپ میرا سوال صحیح سمجھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ابھی خلیفہ بکر صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے لاسٹ 15-20 منٹ میں نے سنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ میں آپ کی ڈسکشن کو
مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں زبردست ہے. ہم، اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں تو یا پھر 0 ملٹیپلائی 100 ہو جاتا ہے، پھر 0 ہو جاتا ہے. یا یہ میرا کویشچن ہے. ہاں، نہیں ٹھیک ہے بات آپ کی. نہیں کیسے ملٹیپلائی بائی زیرو ہوتا کیسے ہے وہ تو بتا دیں کم سے کم. صبر سائد صاحب، آپ نے ان کی بات پوری سنی نہیں. ہاں، وہ یہ فرما رہی ہیں، جو میں سمجھا ہوں آخری جملہ ان کا یہ ہے ہم، کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، جو سلسلہ حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوا. ہم، اب اس کے بعد ختم نبوت جو ہے ہم، وہ اس صورت میں ہو گئی ہے کہ اگر ان سے پچھلے جتنے مرضی نبی آ جائیں، ہم، وہ نبی تو نہیں، نبوت تو ان کے پاس نہیں ہاں ہوگی. ہاں، نبوت نہیں لیکن ہوگی ان کے پاس. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ ایسا فرما کسی نے رہے، نہیں یہی کہا. فرمایا انہوں نے، نہیں، نہیں، انہوں نے نہ یہی فرمایا. بالکل نہیں، قطعاً نہیں، نہ میں نے ایسا کچھ کہا ہے، نہ نہیں آپ میرے کی واقف بات صاحب نے نہیں، ایسا کچھ کہا ہے، نہیں نہ آپ میرے کی واقف بات صاحب نے ایسا کچھ کہا ہے. نہیں، کاظمی صاحب تہاڈی گل نہیں کر رہا، اے نہیں تو آپا دی اور گل بھی نہیں کر رہا. کہہ سکتا انہوں کو کوئی نبوت واپس نہیں لے سکتا. نہیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے آ سکتے ہیں، نہیں، وہ کس نبی طرح سارے آ کس طرح آ سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں آ سکتا. آ کس طرح نہیں. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ. سین بھائی، لالا رخ صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر اور سارے آتی بھی آ اپنا جائیں جملہ نا، سارے بھی آ کہ جائیں میں نے تو یہ پھر کہا، اب سنیں سارے کہ چٹ کے نبی کوئی نہیں آ کریم، سکتا. ایک سیکنڈ، سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین کامل ہو گیا اور نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب اگر دنیا میں کوئی نبی کوئی بھی تشریف لے کر آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کو نبوت مل چکی ہے، تو وہ سلسلے کی پہلی کڑی ہے. تو یہ اللہ وہ تعالیٰ تو نے فرمایا ہے کہ already پہلے ہی نبی جو ہے وہ یعنی دہرائے میں جائیں اگر گے، حضرت واپس ان عیسیٰ کو کی لایا بات جائے گا. کرتی ہوں تو وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ نبی ہے. نہیں، یہ رسول اللہ پہلے صلی اللہ نبی. علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں نا، واہ، تو انہوں واہ. نے فرمایا کہ یزعم، جو دعویٰ کرے گا نبی اللہ کہ میں نبی ہوں، یعنی جو آئندہ نبی آ ہوگا وہ کر دعویٰ یہ ہی کرے دعویٰ گا نا. کرے گا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر جو بھیجا، اس کی بات جو ہے. بھی نبی ہوگا پہلا ہوگا یا بعد میں ہوگا یا درمیانی ہوگا، اس کو جب پوچھا جائے گا کہ آپ نبی اللہ ہیں تو وہ کہے گا نہیں، میں یہ نہیں کہتا، مجھے ذرا شرم آتی ہے، مجھے نہیں اچھا لگ رہا. یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا میں اللہ نبی اللہ ہوں، میں رسول اللہ ہوں. اور رسول اللہ کے بعد کسی نبی کا اور رسول کا، نبی اللہ اور رسول اللہ کا آنا لا نبی آبادی کے مخالف ہے، وہ ممکن نہیں. یہ جو تعویلی مہارت ہے نا، تعویلی انجینئر، وہ اس کے مطلب پہلی کمپنی کے بنائیں یا دوسری کمپنی کے بنائیں، یہ تعویلی مہارتیں ہیں اور تعویلی انجینئرنگ ہے. سمپل بات یہی ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت ہو چکی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دیکھیں، اب میرا ایک سکول ہے، جی جی ٹھیک ہے، جی جی. اس سکول کی میں پرنسپل ہوں. نہیں، یہ بات مجھے تو ہے. اپنے سکول کے لیے جی ٹیچرز ہائر کر دیے، جی ٹھیک ہو کیا؟ جی اب مجھے 10 یا 15 ٹیچرز جو ہے میں ان کو ہائر کر لیتی ہوں، جی ٹھیک ہو کیا؟ جی. اب میری جو ویکینسیز ہے ختم ہو گئی. اب میرے پاس کوئی بھی آتا ہے، کتنا ہی ٹیلنٹڈ ہے، کتنا ہی لائق ہے، میں کہتی ہوں جی ابھی تو مطلب ویکینسیز ختم ہے، میں نے بند کر دی ہے، اب تو ضرورت نہیں ہے مجھے، جی ٹھیک ہے. اب وہ ٹیچر گھر جائے، باہر جائے، دنیا کے کسی کونے میں، ان کو میں ہائر کر چکی ہوں، جی. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی اسکول کے اندر ہے تو تب بھی میرے پاس کتنی ہے؟ 10 ٹیچرز ہیں. اگر وہ اسکول کے باہر ہے تو میرے پاس 10 ٹیچرز ہیں، کیونکہ میں نے جن کو ہائر کرنا تھا وہ ان کو جو مقام ملنا تھا ان کو مل چکا، رائٹ. اب اسی طرح میرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے رسول اللہ تک جن کو نبی اور رسول کے منصب پر فائز کرنا تھا وہ تو ہو چکے. اب کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. یہ اپنا افسانہ، اپنی کہانی لکھنے کے اعتبار سے تو یہ اچھا ہے. ایک ہوتی ہے اسٹرینتھ. اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانا ہوتا ہے کہ جتنے نبی بنانے تھے وہ بنا دیے ہیں اور کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، اور وہ نبی زندہ ہو کے آتے رہیں گے، کوئی فوت ہوتا رہے گا، کوئی آتا رہے گا، کوئی جاتا رہے گا، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ کون آئے گا کون ہے. ہمیں سیدھا نہیں سیدھا لیکن بتایا کہ رسول اللہ زندہ صلی اللہ ہو علیہ کے وسلم. آتے رہیں گے، یہ بات تو ہم نے کہیں نہیں کہی نا، ہاں جی، یہ بات ہم نے نہیں کہی کہ زندہ یہ ہو کے آتے رہیں گے. ہم تو کہتے میں ہیں کہ بھائی جو فوت ہو گیا ہے وہ تو نہیں آ سکتا ہے. نہیں، جو فوت ہو گیا ہے وہ تو نہیں آ سکتا، ہاں جی.
اور رسول اللہ کے بعد زندہ ہونا یا فوت ہونے سے نہیں تعلق کہ رسول اللہ کے بعد زندہ آ جائے گا، فوت شدہ نہیں آئے گا. یہ بات آپ نے کہاں سے لی؟ لا نبی آبادی میں یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، یہ ہے. اچھا دیکھیں مانے ہی غلطی سینی صاحب، کرتے ہیں. جی لا نبی آبادی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جی. میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کوئی اس منصب پر نہیں ہوگا. لا نبی کوئی اس آبادی میرے منصب بعد پر کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں. اس منصب اور پر جس وقت حدیث ہم نہیں ہو حضرت عیسیٰ سکتا. کا کہتے ہیں وہ تو پہلے ہے. نہیں ٹھہریں. لا نبی دیکھیں ایک سیکنڈ، آبادی ایک منٹ دیکھیں میری بات سنیں. لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کوئی نبی کا منصب نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن حضرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا، پہلی جہاں ہے، سے آپ سے پہلی ہے وہ نبی. ذرا سا اور تھوڑا سلو چلتے ہیں. لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں. جو مرضی کہہ لیں، سب ایک ہی معنی دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اور بات صرف سمپل اتنی ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں. یہ ہے نتیجہ. تو یہ دیکھیں جو یعنی جس کر کے معیار جو کی جی حسینی بھائی، جی جس معیار کی یہ حدیث آپ بتا رہے ہیں لا نبی آبادی، جا اسی معیار کی حدیث اسی طریقے سے متواتر نزول عیسیٰ کی بھی حدیث ہے. تو پھر ان کا کیا کریں گے؟ اس حدیث کو تو قرآن کریم کی تائید حاصل ہے نا، لا نبی آبادی کو. اس کو بھی حاصل ہے، اس کو نہیں حاصل، بالکل حاصل ہے. نہیں اس کو کوئی نہیں. لعلم للساعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی لعلم للساعہ، پھر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ واپس آئیں گے. لعلم للساعہ کہتے ہیں. ہاں ہم کہتے ہیں وہی اس کا یہی مطلب ہے. ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی دلیل. ہاں ہم کہتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں اس کا وہ مطلب نہیں ہے، اس طرح ہم کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. بات ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. ہاں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بات ایک ختم ہو گئی، خاص ٹھیک ہو گیا. اصل بات تو اسی پہ فرما رہتی دی ہے نا، نا، ہم کہتے ہیں بات ختم ہوتی ہے. نہیں یہ رسول اللہ نے بھی فرمایا نا. تو پھر آپ یہ بتائیں مجھے میں زینی یہ صاحب. کہہ رہا ہوں، جی علم اللساء کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سات کی نشانی ہے، اس کا علم ہے. علم ہے، ہاں جی. ہاں جی. عیسیٰ علیہ السلام اپنے وجود میں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے وجود، ایک وہ وقت تھا جب عیسیٰ علیہ السلام نے وجود نہیں پکڑا. I need one chips also. Give me also. سینی صاحب ایتھے چکر Sorry, یہ sorry, ہے، جی چکر یہاں پہ یہ ہے جا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے آگے تو میں کبھی بولتا ہی نہیں. جب کوئی آدمی یہ کہہ دے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں، میرا عرض سن لیا کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں، میرا جو عقیدہ ہے وہ تو بالکل قرآن کریم کے مطابق ہے اور وہ بالکل درست ہے. ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਐਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਦੂਸਰਾ ਫਰੀਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਫਿਰ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ ਵਲੀ ਦੀਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਹੈ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਫੈਸਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣੇ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾੜਕ ਸਾਹਿਬ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ, ਆ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ, ਆ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਮਊਦ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓਗੇ? ਜੀ ਦਿਓ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ. ਮਤਲਬ ਮਿਆਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਲਿਆ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਲਿਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਲਹਾਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨੀ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬੇ ਮੁਬੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਖੁੱਲੀ ਯਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅਹਾਦੀਸ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਜਦੀਦ, ਕੋਈ ਕਦੀਮ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਈ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਦੀਸ ਲਾਭ ਨਬੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਆਇਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਸੁਮਾ ਮਾਜ਼ੱਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਫਰ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ स्लो हो जाओ। खादम साहब, मैं एक बात 1 सेकंड बात कर सकता हूँ? नहीं साबिर साहब 1 मिनट रुकें। 1 सेकंड साबिर साहब 1 मिनट रुकें। मैं खादम साहब नहीं, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। 10 सेकंड की बात करने लगा हूँ। नहीं, वो बात आप देखें ना, मेरी बात सुने। ये नहीं तरीका होता ना, जब एक दफा मेरी और उनकी डिस्कशन हो रही है, मैं लगा लूंगा 10 सेकंड की बात करके। आप बात बदल देंगे, आप यकीनन बात बदल देंगे। जैसे आपने पहले बात बदल के हजरत ईसा की तरफ ले गए हैं। हम बात कर रहे थे वाखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, वहां पर आपको कोई कितने चीज स्मार्ट नहीं है। मिली। आप उनकी स्मार्टनेस देख लें, उसके बाद आप गुफ्तगू आगे करें। नहीं, आप स्मार्टनेस दिखा रहे हैं ना यहाँ पे। आप कहते तो हैं आपके पास सतही नॉलेज है, लेकिन इस मामले में आप बड़े कादमी साहब इनको बात बदलने दें, इनको बात करने दे, देखते हैं अभी क्या करते हैं। जी करें बात। जी खादम साहब, जी खादम साहब, तब जब एक कोई क्वेश्चन होता है ना, उसका फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है? अगर आप फार्मूला ही गलत लगा देते हैं ना, तो घंटे घंटे बहस होती रहेगी, रिजल्ट ज़ीरो होता है, ठीक है? आप जब वो हसैनी साहब के उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, ठीक है, आप उसको तो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचने देना, उसके बाद आप इनसे बात कर लेना। अगर ये हसैनी साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़े नहीं होते तो फिर हम और ये दोनों जलेबियाँ निकालते रहेंगे सारा टाइम, रिजल्ट ज़ीरो होगा। जज़ाकल्लाह। जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ। ਦੱਸੋ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ 'ਚ? ਦੱਸੋ। नहीं, मसीह मौत तो बाद जाएगा ना, पहले तो कुरान करीम है ना। कुरान करीम है जी किथे कि नबी जड़ा हजूर अलैहिस्सलाम तो बाद किसी नाल अल्लाह ने कलाम नहीं करना, है किथे लिखा है? मतलब वो भाईजान गल लिखी जे ना, ए गल लिखी जे, कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। खातमन नबीयीन दा मतलब की है? खातम वही मतलब है जो खातम नबीयीन तो खासा है, रसूल है वो तो हजूर अलैहिस्सलाम दा खासा है, खसूसियत है खातम नबीयीन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नंबरिंग जड़ा है ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਧਰੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ? ਲਿਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ, ਵਲਾਕਿਨ ਰਸੂਲੁल्लाह व ਖਾਤਮਨ ਨਬੀय्यिन ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜਨਾ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਤਮਨ ਨਬੀय्यिन ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ
ਇਲਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਲਮੀ ਹਾਥ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਖਰੀ ਨਬੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਮ? ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ। ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮੁਲ ਖੁਲਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਹੈ। ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮੁਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮੁਲ ਕੌਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੇ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਇਹ ਵੇ ਤਰਜੁਮਾ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਨਹੀਂ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਆਇਤ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਮਫਹੂਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਖਰੀ, ਸੀਲ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਜਿਹਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इसमें आला भी आप रसूलुल्लाह ने ਤੇ इसमें फाइल भी आप ने, ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਮਊਦ? क्या हजूर अलैहिस्सलाम तो पहले भी कोई खातमुन नबीयीन हो चुके ने, आखिरी नबी? किसी का दावा है किसी कौम का कि साडे नबी आखिरी ने? नहीं, किसी का नहीं। किने क्या है? मैं कह रहा फिर अपने नबी का दावा बखाना है तुसी। हाँ जी जनाब, तुसी नबी का दावा बखाना है। कौमां बहुत कुछ कहंदियां ने, कौमां दा नहीं दसना मैनू। अगर किसी नबी ने इस तो पहला क्या है कि मेरे बाद को नबी नहीं आएगा, दस दियो, दिखाओ कुरान च कोई है किसी ये गल? तो हदीस है ना, ये जेडी तुसी गल करदे हो हदीस है। कुरान करीम नहीं, कुरान दी आयत है। कि कुरान दी आयत दसना ला नबी बाद वो लिखा है खातमन नबीय्यीन लिखा है कि नहीं लिखा है? मा काना मोहम्मदुन, ए और दसो। नहीं है मोहम्मद तुम में से हाँ जी। अबा अहद मेरे जालेकुम, किसी एक मर्द का बाप नहीं है। ठीक है, वला किन, लेकिन सही। रसूल अल्लाह है, वो अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, वह खातमुन नबीयीन और खातमुन नबीयीन है। ये देखो उन्होंने खासा है। खातमन नबीय्यीन दा तर्जुमा करो इत्थे। खत्मे नबूवत दा खातमन नबीय्यीन दा तर्जुमा क्यों नहीं कीता तुसीं? हाँ जी, खत्मे नबियों की मोहर है। हाँ, खत्म नबूवत नहीं, खत्म नबूवत नहीं, खातमन नबी, खातमन नबीय्यीन दा तर्जुमा क्यों नहीं कीता? नबियों की मोहर है, यही तर्जुमा होगा। नबियों के खत्म करने वाले गलत तर्जुमा है। वो ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं। नबियों के खत्म करने वाले गलत तर्जुमा। नबियां दी खसूसियात उन्हां ते खत्म है ना, कमालात नबूवत खत्म ने उन्हां ते। हाँ हाँ, खसूसियात दा लफ्ज किधरे भी नहीं हैगा। मेरी गल सुनो, ए जेड़ा खातमन नबीयीन, अन नबीयीन की मतलब? मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ कस्टमर आ गया। हाँ जी, हाँ। खातमन नबीयीन दा मतलब है आखिरी नबी। खातमन नबीयीन दा मतलब है खत्म करने वाला तमाम नबियां दा। खातमन नबीयीन दा मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाद नबूवत दा सिलसिला खत्म हो गया है, नबूवत दा मनसब सील हो गया है ते हुण नबूवत दा दर्जा, नबूवत मबूस होना बंद है। ऐ वे मतलब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਦੱਸੋ। खलीफा फकीर साहब, जितनी आपकी बातचीत हुई है खादम साहब के साथ, उसके साथ लाला रुख के साथ, ठीक है, मैंने तो पहले कहा है कि मैं सवाल पूछ सकता हूँ, जवाब दे, मैंने कासर हूँ। जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है ना आपकी गुफ्तगू के साथ कि बंदे ने आना है, शख्सियत के ऊपर है प्रॉब्लम। क्या वो बंदा मिर्ज़ा साहब है या वो बंदा आसमान से आना है? ये जो गुफ्तगू का मैंने रिज़ल्ट निकाला है, मैं ये सही समझा हूँ खलीफा फकीर साहब कि बंदे ने तो आना है, सिर्फ शख्सियत में? नहीं, गलत समझे आप। ठीक, नहीं 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 हाँ जी जी, आप समझा दें। नहीं नहीं नहीं, गलत समझे, जी गलत समझे। पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद आपने उस पूरी की पूरी गुफ्तगू का इसका मतलब है या तो सुना ही नहीं है और या फिर आप उसके अंदर खुद से एक चीज ऐड करके कोई खुफिया मुहिम के तहत या खुफिया इरादे के तहत आपने ये काम मैं किया। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैंने कहीं नहीं ये बात कही कि भाई बंदे ने आना है।
नहीं, किसने ठीक आना है? जिसने आना है उसका नाम ठीक दिया है, हुआ है वहां पर ठीक जनाब। है, ठीक है। वो उसी का मैं नाम आपसे दिया। सुन लेना सबर साहब, अब मैं आपने क्वेश्चन पूछ कमेंट लेता दे हूँ दिया ना, आपसे, मैं समझा दूं, क्वेश्चन आपको पूछ नहीं लेता समझ आई। हूँ। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं, पूछ आपको नहीं लेता समझ आई, हूँ। आपको नहीं मैं आई समझ। क्वेश्चन ले लेना, क्वेश्चन तो आप तब पूछेंगे ना जब आपको समझ में आएगी ना, पहले तो आपको समझ ही नहीं आई, आपने कहा आपको समझ नहीं आई। अब मैं समझाता चलो हूँ आपको, समझा। सुने जरा। बात अभी यहाँ पर जो हो रही थी ना इनके साथ, अगर तो आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, कोई नई बात करना चाहते हैं वो अलग बात है, ठीक है। जो इन्होंने खुद ही किया ये काम, अपना तारिक साहब ने कहा हदीसा ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਈ, तो कहने मेरे को सवाल पूछा है कि भाई कितने लिखिया कुरान दे विच कि रसूलुल्लाह दे बाद को नबी नहीं आना। मैं क्या है ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ जी, खातमुन नबीयीन, नबियों के खत्म करने वाले, खातमुन नबीयीन आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन नबियों में सबसे आखिर, खातमुन नबीयीन मुराद क्या है? मनसब नबीयीन न मनसब नबूवत को सील कर दिया रसूलुल्लाह ने। मैंने ये भी उसमें जिक्र किया, आपने उस तरह तवज्जो नहीं दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें आला भी हैं और इसमें फाइल भी हैं, दोनों यहाँ पर जी। सादिक आती हैं बातें आप रसूलुल्लाह जिस के बारे में। तरफ, जी जी, आप जिस तरफ उनको लेके मेरी बात जा रहे मुकम्मल थे नहीं ना, हुई, मेरी बात चलो मुकम्मल नहीं हुई। कर ले। हाँ, ला तकरब सलाह ना करें, पूरी बात सुने। अच्छा, फिर मैंने सवाल किया है, उसका जवाब तारिक साहब ने देना है, साथ ही टैक्सी की आवाज आ गई है। भाई सवाल का जवाब, अब मैंने अपने सवाल का जवाब दे दिया, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, हदीसें साइड पर रख दी हैं मैंने। अब मुझे बताएं, कुरान से दिखाएं मुझे मसीह मऊद के आने का जिक्र, कुरान से दिखाएं, मसीह मऊद का लफ्ज दिखा दे कुरान से। मैंने तो दिखा दिया आखिरी नबी का लफ्ज, आप दिखाएं कुरान से, या कहें कुरान में नहीं है। दो ही बातें, या है तो दिखाएं, नहीं है तो कहें नहीं है। जी खलीफा फारूक साहब, मैंने आपको यही बताया कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जिनके पास कुरान हदीस का नॉलेज है, ठीक है, वो चीज़ें आपको प्रूव कर सकें। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाले में हूँ। अगर लेना चाहते हैं तो मैं कर लेता हूँ, अगर नहीं लेना चाहते तो मैं फिर म्यूट लगा लेता हूँ। आप क्वेश्चन लेना चाहेंगे? आप आलम बंदे हैं। चले कम से कम इतना तो कह दें कि आपको इल्म ही नहीं है कि कुरान मजीद में ये चीज़ है या नहीं है, ये तो कह दें। मैंने आपको बोला ईमानदारी तो दिखाएं कम से नॉलेज कम। है, मेरे पास सरफस सा नॉलेज है, तो मैं क्यों ऐसी स्टेटमेंट दे दूं जिसका मुझे पता नहीं है। मैं तो आपको ओपन हार्ट ये बात कह दी है, ठीक है जनाबे वाला, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कह दें कि नहीं है, या आप कह दें कि है कुरान मजीद में। आप कह दें मुझे इल्म नहीं है इस बात का। मैंने कहा मुझे इल्म नहीं है। अच्छा चले, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। मैं चले मैं आपको देता हूँ, मैं आपका सवाल पूछने लगा ना। पूछ लीजिएगा, पहले मुझे इस चीज को बांध लेने दें पहले, ताकि हम बार बार उस लूप में दोबारा ना जाएं, सर्कुलर आर्गुमेंट में हम दोबारा ना जाएं, ठीक है। आपको इल्म नहीं है, आपने मेरे पे भरोसा किया है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अब ये गौर से कहीं पर लिख लें इस बात को, पूरे कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक मसीह मऊद का लफ्ज ही मौजूद नहीं है। मसीह मऊद का लफ्ज दिखाने वाले को 1000 यूरो नकद इनाम दिया जाएगा। मैं ना दे सकूं, मेरे बच्चों से ले लेना आके। पूरे के पूरे कुरान में जो मदीने में नाजिल हुआ है उसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जाएं, ये मैं आपको कह रहा हूं, ये सवाल आप अपने मुरब्बियान से पूछें, उनसे पूछें कि मसीह मऊद का लफ्ज पूरे कुरान में मौजूद है कहीं पे, आपको वो यही जवाब देंगे जो मैंने दिया है। अगर निकाल दें 1000 यूरो, 1000 डॉलर सिक्का रहा है जो वक्त आपकी खिदमत में पेश करने का मजाज हूं, इससे बड़ा इनाम और क्या रखूं? 2000 डॉलर, एक सेकंड, 1 लाख डॉलर दे दूंगा। साहब 1122 साहब नीचे हैं, उनको उठा लेना। खलीफा फकत साहब मेरा सवाल ले लें। अच्छा, मेरा सवाल ले लें। आप आलम ये क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर हो गया आपको? मेरा सवाल ले लें। मेरा सवाल, आप आलम बंदे हैं, कम से कम इतना तो मेरी जान बता दें सबर साइड साहब, कम से कम इतना तो बता दें कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको क्या बताया कि मसीह मऊद का जो वर्ड है कुरान में नहीं है। नहीं है, बहुत आला। ठीक है, आप मुझसे ठीक है, अब आपने इसको ज़हन में रखना। हाँ जी, आप सवाल करें, सवाल करें। ठीक है, अब मैं दोबारा वही पे आता हूँ। ला नबियाबाद के बाद किसी बंदे ने आना है, XYZ जो भी है, कोई बंदा दोबारा आना है या नहीं आना है? अच्छा देखें, अभी आप कुरान से बाहर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो बात इससे पहले खादम साहब कर रहे थे, आप अब उसको छोड़ के अब नया सवाल कर रहे हैं। राइट, मैं सही समझ रहा हूं? जिस तरह आपने मुझे सवाल पूछा है, तो मैंने कहा कि आप आलम बंदे हैं, ठीक है। मैं आलिम नहीं हूं। आप बड़ी ये क्या नाम है, डिबेट वगैरह मैंने आपको देखा है। चलो डिबेटर हूं। आप म्यूट लगा लें, फिर मैं लला रुख से बात कर लेता हूँ। आप आलम नहीं है ना, तो मैं लला रुख से बात कर लेता हूँ।
कर लें, उनसे कर लें। जी लाला रुख लेकिन मुझे कम से कम इतना बता दें कि जो खादम साहब के साथ मेरी बात हो रही थी, अब आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, आप नया सवाल रख रहे हैं। मैंने म्यूट कर लिया था ना, खादम साहब चले गए हैं। जी जी। साहब नीचे 1122 साहब आए हैं, उनको अली अहमद अब कोई भी हदीस, उठा ले। अब आपका जो सवाल है उसमें आप हदीस इंक्लूड करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुरान से आपके पास अब नॉलेज नहीं रहा। नहीं, मैंने देखें, आपने खुद ही कहा कि कुरान मजीद में लिखा है खातमुन नबीयीन, ठीक है, और आपने खुद ही कहा कि मसीह मौत का कुरान में जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि खातमुन नबीयीन के बाद बात डन हो गई है, ठीक है। नहीं, इसका मतलब ये कतई नहीं है। नहीं, आप देखें, आप खुद ही कह रहे थे कि नबियों को ख़त्म करने वाला, जी जी ठीक है। जी। अब जब एक आप लाइन लगा लेते हैं कि ये एंड ऑफ द लाइन है, ठीक है, इससे आगे कोई नहीं जा सकता। नहीं, ये एंड ऑफ द लाइन ये आप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, अब इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसी वर्ड कोई इस्तेमाल नहीं किया। हुसैनी साहब से पूछ लें। हुसैनी साहब, मैंने कोई एंड ऑफ द लाइन का लफ्ज यूज किया जी? नहीं किया। हाँ जी, मैं अवे था। क्या क्या बात हो रही है? जी सैन साहब, ये ना अब बात इनकी खादम साहब से हो रही थी, अच्छा, तो बात को फिर मैंने, वो चले गए तो मैंने इनसे सवाल पूछ लिया दोबारा फिर ना। अच्छा जी। इन्होंने उसको ट्रांसलेशन खातमुन नबीयीन का तर्जुमा किया है के खतब नबूवत। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तर्जुमा खत्म वो तो नहीं कर सकते। नहीं किया मैंने नहीं किया। नबियों को खत्म करने वाला, ऐसे ही है। हाँ, नबियों को खत्म करने वाले। हाँ जी। हाँ, ये किया मैंने कहा कि इसके बावजूद, हाँ, ये सारी बात आपकी हो गई, इसके बावजूद क्या अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हजरत ईसा दोबारा फिर आएंगे? हाँ, ये ठीक ये मेरा है। सवाल बनता है कि नहीं बनता था? नहीं जी, बन जाएगा। ये सवाल आपका बनता है, ये बनता है आपका सवाल, बिल्कुल बनता ये है। मैंने कहा कि ये इसको एड्रेस कर दें कि ये आप ये क्या उसका मतलब क्या लेते हैं। जी मैं म्यूट लगाता हूँ। यही बात है। अच्छा बनाए। हुसैनी साहब, आप नहीं थे तो मैंने जो गुफ्तगू मेरी और तारिक साहब की हो रही थी ना, जी जी। उसके अंदर तारिक साहब ने एक मफरूजा गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक रूल पास किया था। उन्होंने कहा था कि एक आदमी साहब हदीसों को साइड पे रख दे। मैंने कहा ठीक है, साइड पे हो गई हदीसें, सिर्फ कुरान ओनली बात होगी अब। जी जी। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि कुरान में कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं? या। मैंने कहा लिखा हुआ है, सूरह अहज़ाब में लिखा हुआ है, खातमुन नबिय्यीन का मतलब या जो है वो नबियों के खत्म करने वाले हैं, या तो उससे मुराद है नबियों के आखिरी, सबसे आखिर। ठीक हो गया। और मैंने उनको बताया ये कि इससे मुराद है इसमें आला और इसमें फाइल भी, इसमें आला भी है और इसमें फाइल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है जी। खातम भी हैं और खातिम भी हैं, दोनों तरीके से इसमें आला भी और इसमें फाइल भी दोनों बनते हैं, क्योंकि एक इसकी जो किरात है वो खातिम भी है और इसके ऊपर हमारा किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं है, मुत्तफिकुन अलैह दोनों किरात हैं। ठीक है। तो इससे मुराद क्या ली मैंने वो भी बताई। मैंने बताई इनको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खातमुन नबिय्यीन अल्लाह ताला ने उनको करार दिया तो उन्होंने इसमें फाइल के नाते उस मनसब नबूवत को जहां से अन नबिय्यीन का सिलसिला था उसको सील कर दिया, बंद कर दिया उसको। उससे मुराद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब सबसे बेहतरीन जो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका, कोई नबी पैदा नहीं होगा नंबर 1, या कोई नबी भी अब मबूस नहीं होगा इस तरह से कि वो पैदा हो या वो दावा करे। ये दो ही सूरत हाल है मबूस होने की। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें अब सील हो चुकी हैं। तो फिर इन्होंने सवाल किया कि आप बताएं ला नबी आबादी का। मैंने कहा अगर तो आप तारिक साहब की बात को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनके साथ तो मेरा रूल था ओनली कुरान, तो ओनली कुरान के अंदर तो ला नबी आबादी तो नहीं है। तो ये कहते हैं कि मैं जो हूँ वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल किया जो कि ये मान गए कि इनको उसका इल्म नहीं था। मैंने पूछा था कि क्या मसीह मऊद का लफ्ज कुरान में मौजूद है? तो उन्होंने फरमाया कि मैं ला इल्म बंदा हूँ, मुझे मैं जो है ना पता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये आपकी ईमानदारी जरूर है, लेकिन आप पूछ लें अगर मसीह मऊद का लफ्ज कुरान से दिखा दिया जाए तो मैं 1000 यूरो मैंने पहले इनाम रखा, फिर मैंने कहा 2000, फिर मैंने कहा 1 लाख मैं कर देता हूँ इसको बढ़ा के इनाम को कि दिखा दिया जाए। इन्होंने कहा ठीक हो गया, बात मान ली इन्होंने। अब इन्होंने सवाल किया है एक नया, वो ये किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा दुनिया में आने के लिए क्या मौक़िफ़ है मेरा? ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम खाई। सवाल मैंने किया है,
मैं जवाब पे आ गया। मैं बताऊंगा, क्योंकि आप मेरी तरफ से कह रहे हैं सवाल भी आपने किया है, जवाब भी आप देंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं म्यूट कर देता हूं। जवाब नहीं मैं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने सवाल किया है वो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों सैन साहब, ये बात ठीक है ना? दुनिया में आना आप कैसे मानते हैं? मैं पूछ लेता यही हूँ बात है। खलीफा बकर साहब, मैं पूछ लेता हूँ। पूछें। मैं कोई सारे बंदे, मैंने इन्होंने सैन साहब जो डिस्कशन किया ना उनके साथ, खादम सैन के साथ, मैंने इनको कहा कि मैंने जो आपकी डिस्कशन सुनी है उनके साथ, उससे मुझे ये पता चला है कि नबी जो नबियों ने नबियों को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इसके बावजूद मुझे ये आप बताएं कि ये नबियों को ख़त्म करने के बाद क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनमें इंक्लूड हैं या उससे बाहर हैं? क्या वो दोबारा आ सकते हैं? ये मेरा सवाल है। और किया था आपने, बता दें। देखें, सेम ये मैं खातमन नबीयीन का, पहले तो मैं दो चीजों को ना देखें, जब मैं ये कहता हूँ ना कि मैंने, क्योंकि आज अगर खलीफा बकर साहब अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है ना, तो फिर आप वाली खतबे नबूवत के साथ मैं सारी क़यामत तक खड़ा नहीं हो सकता। अब आप सवाल नहीं कर रहे, अब आप फैसला सुना रहे हैं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ये मैं म्यूट लगाता हूँ, अब बोले। नहीं, आप अब फैसला सुना रहे हैं। अगर आपने फैसला ही सुनाना है सबर साइड साहब, तो मैं ये लिख लेता हूँ कि सबर साइड साहब ने बता दिया है, वालेकुम सलाम, ये सबर साइड साहब ने ये बात बता दी है मुझे आज कि भाई हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है। ये बात मुझे पहले ही पता है कि आप यही कहते हैं कि हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है, और ये बात आपको भी पता है कि हम कहते हैं आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, नई बात यह है कि आपने 3 दफा सवाल किया, 3 दफा सवाल बदला। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये भी रिकॉर्ड पे लिख लें। खातमन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमन नबीयीन होने का और हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दोबारा इस दुनिया में नाजिल होने का आपस में कोई डायरेक्ट म्यूचुअल ताल्लुक ही नहीं है। तो ये बात ऐसे ही होगी अगर इसको ताल्लुक जैसे आपने बनाया, तो आपकी बात की मिसाल ऐसे ही है कि क्योंकि हसन काज़मी ने आज चावल खाए इसलिए चाइना में आज बारिश होगी। क्या ताल्लुक है दोनों बातों का? कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपस में कोई ताल्लुक नहीं। ना तो ये एक आयत में मौजूद है, ना सेम सूरत के अंदर ऐसी बातें मौजूद हैं। सूरह अहज़ाब में कहीं पर हजरत ईसा का जिक्र मौजूद है? बता दें मुझे, कोई आयत निकाल दे मुझे कि उसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कोई जिक्र मौजूद है इस तरह का स्पेसिफिकली। अब मेरे बिहाफ के ऊपर 1122 या मूसा साहब बात करेंगे। नहीं, वो बात करेंगे, वो अलहदा बात करेंगे। अब आप ऐसे ना करें, अब आपने इतनी गुफ्तगू करवाई है। नहीं काज़मी साहब, थोड़ी बातों से ही बातें निकलती हैं, बातों से ही बातें निकलती हैं। यही बात है जिस तरह आपने 1000 यूरो लगाया। नहीं, सबर साइड साहब का सवाल का जवाब मैं ना दूं, इसका मतलब वही जवाब में से ही बात निकली है। नहीं, उनकी 1000 यूरो वाली बात है ये। मैंने जवाब अभी दिया ही नहीं है। अच्छा, तो जवाब में से बातें कैसे नहीं की? जवाब अभी आया ही नहीं है मेरी जुबान पर, तो आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? माशाल्लाह। मैं आपकी वो 1000 यूरो वाली बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मसीह मौत का लफ्ज कुरान से दिखाना। हाँ, तो आपके बकौल ये आपको लफ्ज दिखाना है हमने बिल्कुल, या आपको बिल्कुल लफ्ज इश्तिहारत? बिल्कुल लफ्ज दिखाना ना। क्या आपको पता है कुरान मजीद क्या कोई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो वाज़ेह बयान नहीं करता, जैसा कि कुरान की आयत के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, आप बताएं कुरान मजीद में क्या वाज़ेह लिखा हुआ है 5 वक्त नमाज पढ़ें? आप कहते हैं नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ वाज़ेह। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता? नहीं, आप दिखा दें। कुरान मजीद में नमाज के औकात का जिक्र नहीं है? 5 वक्त का नहीं है, अलग अलग जगह पे, एक जगह पे 2 बार का जिक्र है, एक जगह पे 3 बार का जिक्र है। नमाज के औकात का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद नहीं है? औकात का जिक्र है, 5 वक्त का मैंने बात की है। अच्छा, तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि हर चीज जो है वो क्लियर कट नहीं है, कुछ इश्तिहारतन बातें हैं वो हमें हदीस से जाके मिलती हैं। कुछ इश्तिहारतन बातें हैं, बहुत सारी हैं। बहुत सारी नहीं है। देखिए, अब आपने कुरान की आयत जब मैं बता देता हूँ, जैसे देखें, जैसे हैज के दिनों में औरत के करीब मत जाओ। अब इससे वाज़ेह क्या बात निकलती है कि करीब मत जाओ, उससे दूर रहो। आप दूर यही बात है ना, यही बात है ना। आप दूर रहते हैं, इसकी तफसील कहाँ से मिलती है कि करीब मत जाओ का मतलब क्या है? क्या मतलब है?
बताएं। हाँ, तो ये कहाँ से मिलता है हमें, ये बताएं ना, कहाँ से मिलता है? कुरान मजीद से मिलता है हमें? देखें 1122 साहब, उनका जो सवाल था उसके सवाल को अब आप ज़ैली नहीं, जगह पर लेके जा रहे मैंने वो 1000 यूरो वाली बात सुनी है ना, कि अगर आप हैं। तो मसीह मौत का लफ्ज़ लफ्ज, दिखा देना। तो आप भी तो इमाम महदी को मानते हैं, इमाम महदी का लफ्ज दिखा दें, फिर 1000 मुझसे ले लें। आप भी तो मानते हैं ना इमाम महदी मसीह आना है, मौत आप का 1000 मुझसे ले लें, इमाम महदी का लफ्ज दिखा दें। मसीह मौत, तो इसका मतलब तो यही हुआ हम ना मसीह कि मौत आप को मेरे इमाम से महदी पूछें। समझते हैं, आप भी इमाम महदी का इंतजार नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ये आप इमाम महदी का समझते लफ्ज हैं दिखा दें, 1000 मुझसे ले लें, उसके बाद मैं फिर आपसे ले लूंगा मसीह मौत का नहीं लफ्ज नहीं दिखा नहीं, दें। ये बड़े अफसोस की बात है। आप इसका मतलब है गुफ्तगू सुन ही नहीं रहे थे मेरी और सबर साइड की, और उससे पहले मेरी नहीं, मैंने और खादिम साहब की। आपने सुनिए वाजे आपने करके मेरी और बयान उससे की है काजमी साहब, आपने वाजे करके बयान की है ना, 2 बार बयान की है। एक बार साबर साइड साहब को कि मेरी ये बात हो रही थी, उसके बाद हुसैनी साहब को बयान किया। तो उसमें आपने 1000 रुपया, उसमें एक शर्त थी, हाँ उसमें एक शर्त थी शर्त ना, थी। वो शर्त क्या थी? शर्त आपको पता है कि वो शर्त आपकी लगानी बनती वो थी इस बात पे? वो शर्त क्या थी? वो शर्त यही शर्त थी कि इमाम महदी का लफ्ज दिखा दें और 1000 ना 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 मुझसे। ना ना ना, शर्त ये थी कि खादिम साहब ने ये फरमाया था कि काजमी साहब इस गुफ्तगू को करने के लिए हदीसों को साइड पे रख दें, हदीसों की तरफ आपने नहीं जाना। हाँ बिल्कुल, ये थी शर्त। हाँ, अब आप जब आए हैं तो अब आप आके मुझे क्या पेश कर रहे हैं? हदीस की हुज्जत पेश कर रहे हैं, जबकि ये हदीस की पहली हुज्जत नहीं, हुज्जत नहीं, हदीस हुज्जत ही पेश कर रहे हैं। मैं और मेरी क्या बात कर रहे सुनने, मैं बता रहा हूँ कि कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी तफसीर हमें अहादीस से मिलती हैं। हैं? बिल्कुल, तो इसका मतलब है अहादीस का फहम साथ होना लाजिम व मलजूम हो गया। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक होगी बात। अब हाँ जी। ये बात आपके खादिम साहब नहीं मान रहे थे उस वक्त। नहीं, अहादीस का वो कह फहम रहे थे होना, हदीसों हाँ को साइड मेरी पे बात रख सुनिए, दें। एक चीज है, हाँ एक चीज है, मैं बताता हूँ, एक चीज, ठहरे साहब एक मिनट, इंक्लूड करना चाह काजमी रहे हैं साहब एक चीज तो आप है जरूर कि एक करें। दावा, सुन तो लें, एक चीज है इसका दावा मौजूद है चलें एक पूरी काम उम्मत करें, हदीसों मुसलमान से में, दिखा दें, मसीह सुन मौत तो का लफ्ज़ लें। हदीसों से दिखा दें। भाई चलें, बात तो सुन लें, 1000 यूरो बरकरार है। सुन ले साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तारक साहब की, कि मसीह उन्होंने मौत अगर का ये लफ्ज हदीसों में है। मसीह मौत का होना जरूरी नहीं है, हाँ, होना जरूरी नहीं है ना। ये बड़ी जबरदस्त बात काज़मी आपने भाई, हाँ, काज़मी भाई होना बात पता जरूरी क्या है? नहीं है। काज़मी भाई आपने क्राइटेरिया जो रखा है ना, ये बड़ा अजीब सा रखा हुआ है। मैंने हाँ, नहीं वो रखा, मुझे मैंने उसी पे criteria नहीं हैरानगी हो रखा। रही है ये मैंने कि criteria नहीं अगर रखा। नाम दिखाओ। अगर तारक साहब ने ये बात रखी है, मूसा भाई एक मिनट प्लीज, तारक भाई ने ये बात रखी है, तो उन्होंने आपके दावों के ऊपर, आप सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरी जो आपके फिरके हैं उनकी सब की तरफ से जिनकी यानी कि आप आपको नुमाइंदगी कर रहे हैं, इंटेंशन का भी इल्म था। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा सुन तो knowledge है लें, आपका, नहीं गायब ये के ऊपर आम है बहुत ना, अजीब ये है। एक चीज सुन ले काज़मी साहब, एक चीज आम है कि गैब हम पर ये अबूर है। मानते हैं कि कुरान मजीद में खत्म नबूवत हो गई है, ये चीज आम है। इस आम चीज आप को तो हम कहते हैं जब जारी आपसे है। पूछते हैं तो आप कहते हैं कुरान से जारी है, फिर आम कैसे हुई? क्या मतलब, क्या मुझे समझ आम नहीं का आई मतलब क्या होता है? कि आपकी आप तरफ नहीं ये कहते आम नबूवत बात है, जारी है, आप नहीं आपकी कहते तरफ ये नबूवत आम जारी है। बात है। भाई आप अब देखें हाँ। जूं आपसे आपके साथ गुफ्तगू करता चला जा रहा हूं ना, जी आप उतने ही ज्यादा चीजों को साथ क्वालिफिकेशंस ऐड करते चले जा रहे हैं। पहली क्वालिफिकेशन ये थी कि कुरान के बाहर नहीं जाना, आप किसने अब कुरान कहा? से बाहर खुद जाने की हाँ, दलील दे वो रहे हैं मुझे। जिस बात गया, का ठीक कहा, हो गया। सुन ले, जिस बात का कहा अब उस मैंने जब बात आपसे पे नहीं पूछा, जाना। अब मैंने जब आपसे पूछा कि चलें अब- जी मसीह मौद का जिक्र आप कहते हैं कुरान में तो नहीं है, आपने मुझे नमाज की एग्जांपल दे के इधर उधर से भाई बात करके हमने, मैंने हदीस हाँ दिखा सुन दी। ले किसी के जो आता मैंने है आपको उसको पक्का मैं ही बताता हूँ, इसलिए किया था। मैं बता देता हूँ, मैंने मैं आपको बता देता पक्का हूँ। इसलिए किया था ओ ताकि आप भाई एक दफा कहें सही, तो आप मसीह मौद का जिक्र आप मुझे हदीस से दिखा दें। सुन तो लें, अगर किसी आय को लक़ब मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, नहीं, आय ठीक को है, नहीं, किसी को उसका नहीं, किसी को सुन नहीं, ये भी तो आप गलत बोल रहे लें, हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, ये एक अलग दावा है, अलग मौजू है मसीह मौत के लफ्ज वाला। इस पे हमारा ये दावा बिल्कुल नहीं है कि ये लफ्ज कुरान मजीद में मौजूद है। फिर आप हमें कह सकते हैं भाई कुरान चलें, मजीद एक से मिनट रुक लफ्ज जाएं निकाल आप। के दिखाओ। अभी एक मिनट एक चीज रुक जाए। माशाल्लाह, हाँ बड़ी जी। अच्छी बात थी। सबर साइड साहब, आपको मैंने जो बात बताई थी आपके भाई ने वेरीफाई कर ली कि आज के बाद आपने भी ये बात कहनी है कि मसीह मौद का जिक्र कुरान मजीद में नहीं, ये गलत बात, आपने भी ये आप मेरे अल्फाज को गलत कोट कर रहे ऐसी हैं, बात आप मेरे अल्फाज आपने को यही बात गलत कही कोट है। कर रहे हैं काज़मी चलिए साहब। दोबारा करें। मैंने कहा है कि मसीह मऊद का लफ्ज कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। आपने पहले जिक्र का लफ्ज नहीं यूज किया था? मैंने जिक्र का लफ्ज नहीं मौजूद किया, मैंने जिक्र नहीं बोला। आर यू श्योर? मैं बिल्कुल श्योर हूं, मैंने जिक्र का मैं तो लफ्ज़ कहता हूं कि भाई जिक्र उन देखे ना,
बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैंने पहले ही बात मेरा मैंने सवाल स्टार्ट क्या इसी था? से किया मेरा कि सवाल क्या बहुत था सी ऐसी सबर साइड चीजें को? जिनका कुरान मजीद में जिक्र है, ठीक है, लेकिन हाँ, अब आप देखिए, अब उसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब आप जिक्र कर रहे हैं, अब आप जिक्र का वर्ड कर रहे हैं। मेरा सवाल हाँ, क्या था सबर साइड साहब से कि मसीह मौद का क्या दिखाना है? मसीह मौत का इश्तारतन जिक्र दिखाना है। हाँ 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 हाँ, ये हाँ, मैंने ये कहा था, इशारतन जिक्र दिखाना है, ये मैंने तो कहा था। हमारा तो दावा देखी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हाँ इलाहा जी, इल्लल्लाह। हाँ आप जी, गौर करें जरा, डबल हमारा दावा तो साहब यही है। सलाम। नहीं नहीं नहीं, सबर सबर, आपका दावा जो भी है हाँ मुझे जी, उससे क्या लेना? ठीक मेरा है। सवाल क्या था? आपने मेरा सवाल ही बदल दिया। आपने कहा कि मेरा मसीह सवाल क्या मौत था का सबर लफज साइड साहब? दिखा दें कुरान मजीद से हाँ, और 1000 यूरो ले लें। मैंने कहा शाबाश इमाम शाबाश, महदी का लफज आपको दिखा याद दें, आ गया। 1000 यूरो मुझसे ले लें। आप, हाँ, लफज की बात हुई थी, लफज की हाँ, बात हुई थी, हाँ जी, लफज की बात हुई थी। हाँ, तो और क्या अभी किस चीज आपने की बात अभी है? आपने जब, हाँ, तो अभी आपने मुझे मिसकोट क्यों किया कि अब मैंने कहा मैंने मुझे कब हमने इस्तारतन कहा जिक्र मिस कर दिखाएं? दिया, कहाँ मिस कोट किया मैंने बताएं? आपने कहा है कि काज़मी साहब, आपका सवाल ये था कि आपने ये पूछा सबर साइड साहब से कि कुरान मजीद में इस्तारतन मसीह मौत का जिक्र दिखा दें। ये तो मेरा सवाल ही नहीं था, सवाल था मसीह मौत का लफ्ज दिखा दें। आपने कहा लफ्ज मौजूद होना जरूरी नहीं है, अहादीस के अंदर से हमें फहम मिलता है। मैंने कहा अहादीस के अंदर से आपने, जैसे हमें नमाज के औकात का आपने बताया, उसी तरीके से आप मुझे मसीह मौत का लफ्ज अहादीस में से दिखा दें, दिखा सकते हैं? हाँ, अब सुने, एक जो दावा होता है ना काज़मी साहब, आप दावे से, हमारे दावे से हट के सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, नहीं, हमारे बिल्कुल हट के। अब मैं आपको बोलूं मुझे आखिरी नबी का लफज दिखा दें, आखिरी नबी का लफज दिखा दें, अब नहीं दिखा सकते, दिखा सकता हूं। लेकिन दिखाएं कहां पे आखिरी लफज? खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, हाँ, आखिरी नबी, इसका मानी आखिरी नबी है। इसका मानी आखिरी नबी है। करें तर्जमा, कहां से करते हैं तर्जमा? करे तर्जुमा, निकालें जरा। नहीं नहीं, आपने निकाला, आपने मुझे दिखाना, दिखाएं। खातमुल खुलफा का मतलब सबसे आखिर में आने वाला खलीफा किया कि नहीं किया? ठहरे, ये बात मैंने खातमुन काजी साहब को बताई थी, नबीयीन जो है, अपने से आपको नबीयीन जवाब में। नबी है या अंबिया है? नबी जमा है या वाहिद है? जमा है या वाहिद है, हम बताएं। खुलफा वाहिद है, जमा है। ओ भाई, नबीयीन और नबी अलग अलग चीज नहीं है खलीफा और खुलफा अलग अलग चीज नहीं है भाई। हम खलीफा खुलफा बात नहीं कर रहे, हम तो आपने कहा हम कि कर रहे हैं, खातमुन हम कर रहे हैं। नबीयीन मैं का बताता मतलब हूँ ये कैसे। बनता है कि आखिरी नबी। मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ हाँ कैसे। जी, अब गौर से कैसे सुनिएगा, बनता है? गौर से सुनिएगा। तर्जुमा जिस नहीं तरह बनता, आप बता दें, आप बता ना दें ना कि ना, तर्जुमा नहीं अभी ठहरे, बनता। अभी ठहरे, अभी हाँ, ठहरे, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको तरीका। खातमुन नबीयीन का मतलब है आखिरी नबी, ठीक है। ठीक हो गया जी। खातमुन नबीयीन का मतलब क्या है? कहां से आखिरी लिया नबी। आपने आखिरी नबी? मैं बताने लगा हूं ना, सुने तो सही पूरी बात। बात सुनेंगे तो फिर है। इसके अंदर मुझे इस लफ्ज के अंदर मफहूम से निकाल के देना, ये तर्जुमा ना ना निकाल ना के ना, देना? मफहूम नहीं, एग्जैक्ट मानी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मानी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मानी, ठीक है, एग्जैक्ट, हाँ हाँ, एग्जैक्ट मानी बता रहा हूँ। हाँ, खातमन नबीयीन का मतलब है आखिरी नबी। उसी तरीके से जिस तरह खातम का लफ्ज जब जमा के सीगे अल खुलफा पर इतलाक पाता है तो वो सबसे आखिरी खलीफा कहलवाता है, नंबर एक चीज। इसी तरीके से जिस तरह खातम का लफ्ज जब औलाद पे जमा के ऊपर मजाफ अलैह बनता है तो उसका मतलब भी होता है कि आखिरी औलाद, और उसके बाद मेरे माँ बाप के घर में कोई बच्चा पैदा ना हुआ, इस तौर से मैं खातिमुल औलाद ठहरा। उसी तरीके से ये बातें तीन मैंने एग्जांपल दे दी आपको, प्लस नबियों आप के खत्म मुझे करने वाला, ये मेरी बात सुनिए। नबियों के खत्म करने वाला भी दे दिया मैंने। नहीं ये नहीं बात मैंने नहीं, देखिए अभी आप सारी दो बताई। तर्जमे कर रहे हैं, ना ना, एक ही दो तर्जुमा तर्जमे कर कर दिए ना आपने। एक किया, एक हाँ, एक ही अभी किया। क्या किया? नबियों को खत्म करने वाला किसका तर्जमा किया? खातमुन नबियीन का। और आखिरी नबी किसका किया था? इसी का। हाँ, तो इन दोनों में तर्जुमा में फर्क तो नहीं जो है? आखिरी होता है, हाँ, तो आखिरी होता है वो खत्म करने वाला ही होता है ना, और क्या होता है? अच्छा, दोनों में कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। मतलब एक लफ्ज के दो मायने की बजाय तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। फिर बताएं चौथा अगर इसके साथ मेरी मिलता मेरी होगा बात तो सुने मैं ना, सही कह आपने रहा दो मायने किए हैं, दो मायने किए हूं। हैं, नहीं, एक ही माने किया है। दो मायने है ना, एक ही नबियों को चीज खत्म को, करने वाला। अगर नबियों को खत्म करने वाले का मतलब भी नबिय्यीन है, का मतलब नबियों को खत्म करने वाला है, तो फिर मतलब भी, उसका मैनी आखिरी हाँ, नबी नहीं हो सकता। अगर आखिरी कैसे? नबी है तो नबियों को खत्म करने वाला नहीं हो सकता। ये दोनों मैनी नबियों को, मफहूमन तो माने जा सकते ना 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 हैं, लेकिन ना, लफ्जी मैनी ये माने देखे नहीं ना, जा सकते। नहीं 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 नहीं,
नहीं आपने ऐसे नहीं मुझे होता। लफ्जी मैं नहीं ऐसे नहीं बताना होता। है, खातमुन नबीयीन का उसमें आप 2 तर्जमे दिखा रहे खातमुन हैं, 2 नबीयीन का मतलब है आपने पहले देखिए अब आप आ गए लफ्जी मानी के ऊपर। तो पहले आपने मानी कहा था मानी इसका जब मैंने मतलब बताएं। बार बार पूछ रहा हूं कि इसके मानी क्या है, खातम नबीयीन हाँ, का तो जब अब मैंने आपने लफ्ज इसके बयान अंदर किया है, इससे जाहिरी बात यही थी तो अब मेरी आपने कि उसमें इसका लफ्जी मानी किधर से एक ऐड नबी कर बनता है या नबीयीन बनते हैं। अब आपने उसमें लफ्जी का लफ्ज आपने ऐड नहीं किया। तो मानी से मुराद तो यही था ना कि लफ्जी मैंने बताई। हाँ, तो इसका मतलब है आप मानी कहें और उसके बाद आप लफ्जी मानी कहें, ये दोनों बातें बराबर हो सकती हैं। खातमुन नबीयीन का मतलब आखिरी नबी होना, ये नबी को खत्म करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि डबल अच्छा, 1 डबल मतलब 2 साल 2 का मैनी स्वयं हो जो है सकते वो हैं, बड़ा है इसके ज्यादा। 3 या 4 मैनी क्यों नहीं हो सकते? फिर करें आप 2 तीसरा मैनी मानी करके करें। ठीक है, अगर कोई चलें बंदा तीसरा तीसरा करें। करे तो वो भी तीसरा ठीक करें, है। आप करें तीसरा कौन सा है? मैं पहले असूल तो रखे ना, करके दिखा दें, पहले असूल रख लें, मिसाल दें। पहले ना असूल रख लें, असूल आपने बयान असूल कर दिया। बनाएं कि असूल तीसरा आपने मैनी बयान करने कर वाला दिया कि बंदा आप भी कहते ठीक हैं होगा। एक ही लफ्ज के साहब। आप कहते हैं 10 मानी भी हो सकते हैं, ऐसे ही आपने कहा, ये आपका असूल है। नहीं, आप ये असूल को अप्लाई अब मैं आपको ये आप कहता अपने ऊपर हूं, मैं आपने जो आपको यही अप्लाई कहता कर हूं, मैं लिया आपको यही असूल, कहता हूं कि 2 मानी काज़मी आपके साहब, मुताबिक 2 मानी मैंने बयान आपने किया, हालांकि एक 2 असूल मानी नहीं, अप्लाई मैंने कर एक ही लिया मानी अपने बयान ऊपर। किया। सुन ले, आपने एक असूल एक लफ्ज के 2 मैनी करके अपने ऊपर अप्लाई कर लिया ना। ये तो आप कह रहे हैं कि मैंने अच्छा, किया। अभी आपने 2 मैनी नहीं किए। मैं आपको कह रहा हूं ये दोनों एक ही बातें हैं। अच्छा, दोनों आप एक कह ही रहे बातें हैं, हैं लेकिन अल्फाज तो 2 है ना, आप अल्फाज कह 2 रहे हो गए हैं ना। 2 हैं, आप कह रहे हैं 2 हैं, अच्छा मैं कह रहा हूं एक ही है। लेकिन अच्छा, आप कह रहे हैं काज़मी साहब आप 2 हैं। आप एक चीज मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं और हाँ उसके जी। ऊपर सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको कि जब आपने कहा इसके मानी क्या होंगे, मैंने आपको मानी बताए, ठीक है। तो जब मैंने लफ्ज पूछा कि खातम के क्या मैनी होंगे, नबीयीन के क्या मैनी होंगे, आपने मुझे अलग-अलग पूछा है। दोनों आपने सुन ले, मैंने बोला मैं ये पूछा, सवाल आपने पूछा है? आपने पूछा, अगर ये आपने आप उसके सवाल पूछ ऊपर रहे तो मैं सुन इसका ले, सवाल का जवाब भी देता हूं। आपने आपने ये सवाल नहीं पूछा, सुन तो ले, पूछ ले आपने शनी साहब से, उसके आपने ये ऊपर सवाल मुझे पूछा था क्लियर, कि खातम आप के सुन अलग तो बताएं, ले, अन्य नबीयीन के अलग बताएं। काज़मी साहब सुने, आपने इसके ऊपर मुझे क्लियर कट कहा कि नबीयीन का लफ्ज अगर खातम के साथ यूज होगा तो इसका मैनी एक भी हो सकता है या होगा, उसके ऊपर आपने 1-2 मिसाल पढ़ के सुनाई। ये लफ्ज ठीक है? मैंने नहीं कहे जो आप मुझे कह रहे हैं। मैंने बता मैंने रहा आपको ये हूँ, कहा, आपने आपके मैंने लफ्ज आपको दोहरा नहीं रहा, मैंने तो आपको बता रहा हूँ, दोबारा सुने, मैं आप काज़मी असल में साहब क्या है, आपको सुन नहीं आपके रहे। लफ्ज बता नहीं रहा, मैं दोहरा रहा हूँ कि आप आपने दोहरा इस तरह नहीं रहे, किया। आप नहीं दोहरा नहीं रहे, आप दोहरा नहीं रहे, क्योंकि आप मेरी बात को आप बदल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं। अच्छा, आप भी बदल रहे आप हैं, दोबारा करके सबर देख साइड लें, साहब भी बदल रहे आपने यही बात की है कि नबीयीन के आप लफ्ज के आप साथ ये ना अगर कहें, खातम आप का ये लफ्ज कहें, आएगा आप तो ये उसको कहें, हम काजी वाहद के साहब, आप सीगे अपनी मिलेंगे। बात दोहरा दें, मैं दोहरा देता हूँ, दोहरा दे, फिर आप उसमें से जो भी नुक्ता निकालना है वो निकाल के दिखाएं। हम्म, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोहरा आप दे, अपनी दोहरा तरफ दे, से लफ्ज ऐड करें और दोहरा फिर दे। मुझे आप कहें दोनों कि आप मानों इसको की माने, ऐसा तो सुन नहीं ले, हो सकता। आपने जो 2 माने खातमुन नबीयीन के किए हैं ना, ठीक है, 2 मानी मैंने उनको नहीं किए, मैं बता रहा हूँ आपको, एक ही मानी। जिनको आप कह रहे हैं कि एक ही मैनी है, ये भी कह रहा हूं मैं साथ, जिनको आप कह रहे हैं कि वो एक ही मैनी है, उन दोनों की तशरीह करके बता दें कि ये किस तरह 2 अल्फाज हैं, ठीक है, यानी खातम और नबीयीन, ठीक है, इन दोनों के ये जो आपने दोनों मैंने किए हैं किस तरह बनते हैं, बता दें। अच्छा, पहली बात तो ये है, आपकी इतला के लिए अर्ज मैं कर रहा हूं, और ये बात आपने कहीं पे लिख लेनी है, क्योंकि अगली दफा ये सवाल दोबारा नहीं पूछना कि मैं जवाब देने लगा हूं। खातमन नबीयीन जो है ना, ये है मुरक्कब अजाफी। अगर आपको थोड़ा सा सरफो नहव का शगफ हासिल होता ना, तो आप ये सवाल ही ना करते। खातम बजाते खुद एक अलहदा चीज है, अन नबीयीन बजाते खुद एक अलहदा चीज है, लेकिन जब इनको मिला दिया जाता है ना, जब इनको मिला दिया जाता है, तब ये वो लकब बनता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया अल्लाह ने, खातमन नबीयीन। और मैंने फरमाया, यहां पर बात मैंने की, गौर से सुनिएगा, खातम खातिम यानी इसमें आला और इसमें फाइल दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैंने बता दिया आपको। और इससे पहले मैंने हुसैनी साहब कोई बात बताई है, ये लेकिन इसमें तो आपका और मेरा कोई शक नहीं है कि ये जो खातम का लफ्ज है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही है, ठीक है। आप गलत कर रहे हैं, मेरी बात को टोक रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं इसमें जो जिसमें मैं एग्री हूं, लेकिन आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त, सिर्फ एनर्जी जाया हो रही है, इस तरह ना करें। जहाँ तक खातमुन नबीयीन का तल्लक है, उसके आप दोनों एक ही माने समझते हैं और एक ही नतीजा निकालते हैं कि यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, ना कोई नया ना कोई पुराना, खत्म नबूवत हो गई है। खत्म नबूवत का मतलब है रसूलुल्लाह के बाद नबी कोई नहीं।
تو یہ مانے تو کوئی احمدی اگر ہو تو اس کو سمجھانا تو مشکل نہیں. مرزا صاحب یہی تو سمجھاتے رہے ساری عمر خاتم نبیین کے، انہوں نے بے شمار دفعہ اس آیت کو استعمال کیا ہے، اس کو حدیث کے ساتھ ملا کے بھی استعمال کیا ہے. تو کسی احمدی کو اس بات پہ بحث کرنا کہ وہ مرزا صاحب کے عقائد کے خلاف، کوئی احمدی بھی اپنے آپ کو کہے مرزا صاحب کی طرف منسوب بھی کرے اور ختم نبوت کو ہی نہ مانے، اس کے خلاف کوئی عقائد رکھے یا بات سمجھائے، نہیں حسین صاحب یہ بہت بات بڑی نہیں ہے. عجیب سی بات ہو نہیں جائے. میری بات سنیں، یہ بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مخالف سے ڈسکشن کرتے ہیں جی جی تو جب اس سے کچھ اگلوا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو دوسرے عقائد ہیں اس کے وہ مخالف بات کر رہا ہوتا ہے. اصل میں یہ بھی مقصد ہوتا ہے بات کرنے کا یا بحث کرنے کا. جس طرح یہ جو ابھی میں نے اعظم صافی صاحب سے بھی کسی احمدی نے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو اوپر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ نبوت جاری ہے، ٹھیک ہے، اس لفظ کو آپ کہیں سے ثابت کر سکتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ مخالفین کو بتائی جائیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی اس نہیں چیز تو کو لکھے نا، یہ مطلب یہ تو دھوکہ دہی ہوگی نا. یا تو آپ کہیں نبوت جاری ہے یا نہیں کہیں کہ کچھ آپ نہیں. میری بات سمجھتے سنیں نا، ہیں. کچھ یہ جو ڈبیٹس ہوتی ہیں یا یہ جو یہ ڈبیٹ تو نہیں ہے نا، جو اشتہار آپ لگاتے ہیں ہاں وہ جی اشتہار تو اشتہار ہوتا ہے، ڈبیٹ نہیں. ڈبیٹ تو ہاں وہ جی ہوتی ہے کچھ چیزیں لگائی جب آپ جاتی ہیں گفتگو اس لیے کرتے لگائی ہیں. جاتی ہیں کہ لوگ آ کے اس کو میرا غلط مقصد ثابت یہ کریں. نہیں ہاں نہیں جی غلط ثابت تو دعوے کو کریں گے نا. اگر احمدیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، نبوت جاری ہے، تو وہ مرزا صاحب کے خلاف ایک محاذ قائم کر کے ایک نئی بات کہہ رہے ہوں گے. مرضی ہے ان کی، کرتے نہیں رہے بے شک. نبوت جاری ہے نہیں، ذلی بروزی نبی آتے رہے ہیں اور نہیں آتے نہیں رہیں نہیں، گے. نبوت کی بات کر رہے ہیں، ذیلی پروزی ہاں کوئی چیز نہیں ہوتا. ہاں ہاں بات یہ ہے کہ نبوت خاتمہ نبیین جو ہے اس میں کسی لفظ کا ترجمہ نہ ذلی ہے نہ بروزی ہے. خاتم کا مطلب خاتم ہی ہے. اور مرزا صاحب نے جب خاتم نبیین کو بیان کیا ہے تو انہوں نے ختم نبوت کو بیان کیا ہے. انہوں نہیں نے اس یہ پہ تو سمجھایا. بحث ہی نہیں ہے نا، اس پہ تو اس پہ تو بحث میں ہی نہیں یہی کر کہہ رہا رہا. ہوں کہ یہ آپ دونوں کے درمیان یہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا لگ رہا ہو کہ وہ ختم نبوت کو ثابت کر رہے ہوں اور آپ اجرا نبوت کو ثابت. یہ بحث جو ہے یہ بڑی عجوبہ ہوگی. میں نے کبھی آپ نے سنا ہے اور مجھے ثانی صاحب کبھی بھی ہاں، کسی کو اور اگر اجرائے ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب انرجی کو ظاہر ہو رہی ہے. تو نہیں جب میں آپ بتا تو رہا ہوں کیوں ہاں جی انرجی ضائع کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے نا وہ اینڈ آف جو پارٹ ہوتا ہے ڈسکشن کا وہ ہوتا ہے جس میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ اپنے ہی عقائد کے خلاف بات کر رہا ہے. 1 1 میں تھوڑا ریکیپ کر دوں جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی. ہاں جی کر لیں کوئی بات. جی حسین صاحب ادھر ہی تھے. خلیفہ وقت صاحب اور لالا رخ صاحب آپس میں نا ان کا نام جو ہے نا کاظمی صاحب ہے. ہاں کاظمی صاحب کاظمی کہیں ان کو گے، صاحب کاظمی خلیفہ صاحب وقت بلاتے کوئی ہیں. نام نہیں. کاظمی صاحب ہاں ہیں جی. ان کا کاظمی تو صاحب نام ہے، یہ کاظمی. چلو پھر بات جی جی وہ چلے گئے ہیں، ناراض ہو گئے لگتا ہے. میں ناراض نہیں ہوئے، وہ کہہ رہے تھے میں بعد میں بات کرتا ہوں، میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے مصروف ضرور. ہوئے. آپ نے ان کو روک دیا، آپ نے ان کا دل توڑ دیا. ہاں نہیں لیکن آپ تو پھر خلیفہ وقت نہیں ہے نا. میں پھر ہاں میں ہوں. آپ کو کس نے کہا حسینی صاحب؟ میری طرف آپ بہت یہ اہل کون حدیث آپ کو خلیفہ وقت میری طرف آپ متکلم اپنی نہیں، بات خود خلیفہ بتایا. وقت آپ کو کس نے بنایا ہے اور کون مانتا ہے آپ کو خلیفہ وقت؟ مجھے بہت سارے لوگ خلیفہ وقت مانتے ہیں، کون ہے؟ مطلب کتنے کے لوگ ہیں؟ کثیر تعداد ہے. آپ کہیں گے اچھا، تو میں گواہیاں پیش کر دوں گا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو خلافت کا کثر خلافت کہاں ہے آپ کا؟ کثر خلافت آپ کو پتہ ہے، روحانی خلافت تو ہر جگہ پر قائم ہے. نہیں، خلافت تو خلیفتن فی الارض ہوتی ہے، یہ روحانی خلافت تو کوئی خلافت نہیں ہوتی. سہری صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کر دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جی یہ جو دائمی روحانی خلافت کا وہ نہ جو دائمی نہ جماعت احمدیہ نے جو ایک کیا روحانی ہوا، اس ہے کا ہی نہیں مطلب ہے کہ آپ وہ دائمی بھی کا. چیز کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی نہ دائمی ہے نہ روحانی ہے. خلافت کا جو ہے وہ دو ہی باتیں ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اعلان فرماتا ہے، جیسے فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ. عرض کو اللہ تعالیٰ ساتھ رکھتا ہے اس کے کسی خاص وجہ سے
हालांकि सिर्फ ये भी कह सकता है कि मैं खलीफा बनाने, लेकिन जा बजा आपको अर्ज साथ मिलेगी, इन्नी जायल उन फिल तकलीफ। और फिर जब फरमाता है नाम ले, जी हाँ जी, नाम लेके फरमाता है कि या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज, दोबारा अर्ज आ गया। हुसैन साहब, इस अर्ज में से आप अर्ज पे हुकूमत किस तरह निकालते हैं वो बता देंगे थोड़ी सी? नाम साथ में अर्ज कर मैंने अभी हुकूमत तो कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये अभी जमीन पर